Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to our eminent speakers and all the viewers out there. आज हम हाजिर हुए हैं एक नई टॉपिक के साथ। हमारे मुल्क में टाइफॉइड की वबा इस वक्त फैल रही है। उसी पर डिस्कशन करने के लिए हमने दो एमिनेंट स्पीकर्स को इनवाइट किया है कि वो बात कर सकें। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त प्रोफेसर डॉक्टर यूसुफ कमाल, जो कि कंसल्टेंट फिजिशियन है तब्बा हार्ट कॉम्प्लेक्स में, खान हॉस्पिटल में एंड मेडिलिंक में, और इन्फेक्शियस डिजीज की असिस्टेंट प्रोफेसर एटलांटा नेशनल हॉस्पिटल। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सादिया आमिर, जो कि डिस्कस कर रहे होंगे टाइफॉइड से पैदा होने वाली सूरत हाल पर, उसकी प्रेवलेंस क्या है, उससे प्रिवेंशंस क्या की जा सकती हैं और उसको किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है, इंक्लूडिंग द डायग्नोस्टिक टेस्ट। So typhoid fever occurs worldwide, primarily in developing nations whose sanitary conditions are poor. It is endemic in Asia, Africa, Latin America, Caribbean, and Oceania. But 80% of the cases comes from Bangladesh, China, Nepal, Pakistan, or Vietnam. Those countries that have sanitary countries having poor sanitary conditions. You can say that typhoid is most common in underdeveloped areas. It infects roughly around 21.6 million people and kills an estimated around 200,000 people every year. So to continue with this topic, I would like to say Dr. Yousuf Kamal to please start the topic from there. Assalamu alaikum colleagues. मेरा नाम डॉक्टर यूसुफ कमाल है. I am an internist by profession. और ये मैंने सब्जेक्ट इसलिए इसको इम्पोर्टेंस दी है कि ये हमारी रोजमर्रा की प्रॉब्लम है कि वी आर फेस्ड विद प्रॉब्लम्स ऑफ फीवर, एंड व्हेन दे कम, पीपल कम विद फीवर, we really have to diagnose what kind of fever it is, whether it is known disease, it can be diagnosed easily, are there any signs of it, or you know how we go about managing these cases. We just can't give them antibiotics and Panadol and send them home. So जो आज की टॉपिक की डिस्कशन है, ये क्लिनिकल डिस्कशन है, इट्स नॉट अ थियोरेटिकल डिस्कशन। Therefore I would start कि जैसे मेरे कॉलीग्स ने कहा, इट्स एंडेमिक टू पाकिस्तान. पाकिस्तान came into fame about typhoid in 2016. And why? Because we alerted the World Health Organization that we are getting a typhoid type of epidemic in Pakistan, endemic to the region of Sindh, which is resistant to most of the antibiotics except two. And the whole World Health Organization got alerted, and they gave travel warning to people who were traveling to Pakistan. So it was not a nice thing that we became prominent in 2016 for having an endemic, what is called XDR. It is multiple, not only multiple drug resistant, which is called MDR. XDR means it is only sensitive to one or two antibiotics, and that is a disaster, because imagine if there was no antibiotic treating typhoid, what will be the consequences? The mortality before treatment was started was 60 to 80%. Alexander supposed to have died with typhoid. So what is really typhoid and enteric fever? This is caused by a rod-like gram-negative organism which has flagella on it. Flagella means hair-like thing, and they help the organism to move about. It is a polysaccharide capsule where the antigens which are contained in the flagella are called H antigens, और जो body में और capsule में है वो O और VI antigen कहलाती है. And they produce an antibody antigen reaction in the blood, और वो हम पहले 100 साल पहले एक टेस्ट विडॉल टेस्ट करवा के मेजर करते थे कि H एंटीबॉडीज किसकी ज्यादा हैं, O एंटीबॉडीज किसकी ज्यादा है, एंड VI एंटीबॉडीज. लेकिन दिस वाज अ वेरी नॉन स्पेसिफिक टेस्ट, और ये भी हफ्ते के बाद जाके पता लगता था. बाय दैट टाइम पेशेंट इज वेरी एडवांस्ड इन फीवर. तो इसलिए क्या करना चाहिए जबकि आपके पास एक फीवर का पेशेंट आए? फीवर का पेशेंट आए तो आप, कोई आदमी मर नहीं जाता फीवर से. You have to just make sure that you examine the person properly. Are there any localizing signs? अगर fever है और throat infection है तो tonsils और pharynx congested है, sinuses में problem तो नहीं है,
कोई एब्सेस तो नहीं है, डेंटल एब्सेस वगैरह बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, लिवर को फील करें कि वहाँ कोई अपेंडिक्स तो नहीं है, कोई डायवर्टिकुलाइटिस तो नहीं है, वाइड थिंकिंग होनी चाहिए आपकी। और फिर उसके बाद सर्दी से बुखार हुआ है तो मलेरिया तो नहीं हो सकता, बॉडी एक्स एंड पेन्स हैं और रैश है तो शायद कोई डेंगू तो नहीं हो सकती, कोई बॉडी में वैसे मैक्यूलो पेपुलर रैशेस हैं तो एक्जेंथेमेटा तो नहीं हो सकते, मीजल्स तो नहीं हो सकता। ये ऐसी चीजों को पूरा ध्यान से आपने देखना है कि कोई लोकलाइजिंग साइंस है कि नहीं। अगर आपके मरीज में लोकलाइजिंग साइन नहीं है तो आप उसको पेनाडोल दें, सिर्फ एंटीबायोटिक शुरू ना करें प्लीज। ये मेरी इल्तिजा है आपसे, आई अर्ज यू नॉट टू गिव एंटीबायोटिक टिल यू कम टू अ फर्म डायग्नोसिस। टाइफाइड की डायग्नोसिस क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है। एक पेशेंट जो आपके पास आता है उसको मलेस है, फीवर है, बॉडी एक्स एंड पेन्स है, हेडेक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स, abdominal pain, constipation, flatulence, tenderness, bloating of the intestine, muscular pain, dry cough। अगर ऐसे वेग सिम्टोमेटोलॉजी है, कोई लोकलाइजिंग साइन नहीं है तो प्लीज टाइफाइड को सस्पेक्ट करें। Now when you suspect typhoid, आप अगर अफोर्डेबल पेशेंट अफोर्ड कर सकते हैं तो उसका ब्लड कल्चर फौरन भेजिए। ब्लड कल्चर क्योंकि उसके 4-5 दिन लगते हैं रिजल्ट्स आने में, लेकिन जो ब्लड कल्चर नहीं अफोर्ड कर सकते तो सीबीसी तो आप टेस्ट करवाएं, कंप्लीट ब्लड काउंट कराएं, देखें कि उस मरीज में व्हाइट सेल की क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, लिम्फोसाइट न्यूट्रोसेल्स की क्या है, और आपके प्लेटलेट्स काउंट कैसे है और ईएसआर कैसे जा रही है। ऐसे मरीजों में जिनमें प्लेटलेट काउंट नीचे हो, लिम्फोसाइट ज्यादा हो, काउंट कम हो बहुत बल्कि, तो वायरल सस्पेक्ट होती है ज्यादातर। अगर वाइट काउंट नॉर्मल है, आपके प्लेटलेट्स भी नॉर्मल हैं, और वो ऐसे मरीजों में आपको टाइफाइड सस्पेक्ट करनी चाहिए। और जब तक आपका कल्चर रिजल्ट नहीं आता, आपने पेनाडोल मरीज को दे दी, उसको आपने फीवर के लिए आपने उसको वेल हाइड्रेट किया, उसकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए उसको विटामिन दें, उसको हाई कैलोरी डाइट दें, उसको मुरगन चीजें नहीं दें, उसको घी बटर स्पाइसेस नहीं देनी, आपने उनको हाई प्रोटीन डाइट देनी है, रेस्ट देना है कंप्लीटली। और अगर आप कंपेल्ड हैं कि आपने एंटीबायोटिक स्टार्ट करनी है तो वो एंटीबायोटिक करें जिससे कि टाइफाइड जर्म्स ससेप्टेबल हों। ना इसकी हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ साल पहले 5 एंटीबायोटिक होती थी जिनसे टाइफाइड के मरीज ससेप्टेबल होते थे, जिसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिलिन सबसे इंपॉर्टेंट थी, और उसके बाद इसके सेप्ट्रान भी आई, टेराविड भी आई वगैरह, ग्रेजुअली रेजिस्टेंट होते गए जरासीम, और इनको हम एमडीआर कह रहे थे। उसके बाद सेबिट्रॉक्सान आई, और सेबिट्रॉक्सान से भी मरीज अब रेजिस्टेंट होने लगे। अब जो 2016 में आई है एक्सडीआर, जो कि हैदराबाद में शुरू हुई थी, 28% पेशेंट्स वर इन हैदराबाद and 69% in Karachi in 2016. Only 2 antibiotics were effective, azithromycin and carbenopems. Carbenopems आपको पता है इंजेक्शन 5-5 हजार रुपए का होता है। The only oral antibiotic which is effective was azithromycin. और मुझे ये डर है कि जिस तरीके से हम एजिथ्रोमाइसिन को मिसयूज कर रहे हैं, जैसे आजकल कोरोना की इन्फेक्शन है, जिसका भी पीसीआर पॉजिटिव आया है उसको एजिथ्रोमाइसिन दी जाती है। एजिथ्रोमाइसिन इज नॉट द ट्रीटमेंट फॉर कोरोना, इट इज गिवन टू प्रिवेंट सेकेंडरी इन्फेक्शन अगर उसकी कोई एविडेंस हो। लेकिन अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन एविडेंस नहीं है तो एजिथ्रोमाइसिन इज नॉट द ट्रीटमेंट। लेकिन हर दूसरी प्रिस्क्रिप्शन मेरे पास जो आती है उसमें जेट्रो, एजोमैक्स, एजिथ्रोमाइसिन दी जाती है। और मुझे डर और खदशा ये है कि एक सेंसिटिव एंटीबायोटिक है जो हम यूज कर सकते हैं, वो भी अगर रेजिस्टेंट हो जाए तो उसके बाद कार्बेनापेन कितने लोग अफोर्ड कर सकेंगे। आजकल आपको पता है कि कोरोना की इन्फेक्शन है, ये भी प्रेजेंट करती है हाई फीवर के साथ, जिसके कोई लोकलाइजिंग साइन नहीं होते। लेकिन अगर आप इनका सीबीसी आप टेस्ट करें तो आपको पता लग जाएगा कि प्लेटलेट काउंट लो हो रही है, व्हाइट काउंट बढ़ नहीं रही, एलडीएच फेरेटीन लेवल्स जो हैं
और CRP वो ज्यादा हो रहे हैं। तो PCR के साथ अगर ये चीजें स्पेसिफिक हैं तो ये ज्यादा पॉइंट करती है कोरोना लाइक इन्फेक्शन में। लेकिन अगर आपके मरीज को हेडेक है और सवियर हेडेक और आप इनकी पल्स स्लो है, एक 40 साल पहले हमारे क्लिनिशियन हमें कहते थे कि पल्स टेम्परेचर रेशियो जो है वो टॉक्सिक मायोकार्डाइटिस की वजह से मेंटेन नहीं होता। और वाकई अगर आप देखें तो टेम्परेचर 104 होगा लेकिन पल्स स्लो होगी। ये रूल अभी भी क्लिनिकली वैलिड है। हेडेक्स, स्लो पल्स, हाई फीवर, मलेज, bloating of the stomach, tenderness all over, constipation, later diarrhea, and rose spots on the trunk. Please look for rose spots. अगर आप देखेंगे नहीं तो आपको मिलेंगे नहीं. If these are present, that is a high index of suspicion. What do you do then? In those cases, you send the blood for culture and sensitivity, because to detect multiple drug resistance, not only to diagnose but multiple drug resistance. और ऐसे मरीजों को अगर आप स्टार्ट ही आपने करना है तो लोडिंग डोज आप देंगे अजिथ्रोमाइसिन का 1 ग्राम फॉर 2 to 3 days, और उसके बाद 500 मिलीग्राम्स कम से कम 7 to 10 days तक इनको, अगर कंफर्म हो जाए कल्चर का रिजल्ट आ जाए। सपोजिंग अगर कल्चर का रिजल्ट कंफर्म नहीं होता तो देन यू कैन स्टॉप द एंटीबायोटिक, लुक फॉर सम अदर कॉज। अदर कॉजेज क्या हो सकते हैं? अदर कॉजेज एप्स्टाइन बार वायरस हो सकता है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस हो सकती है, ब्रूसेलोसिस हो सकती है, फिर पीयू के ये इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज हो सकती है। अब पूरे आपकी even in older people it can cancer cause the thing, fever also. Then you do the full gamut of tests for pyrexia of unknown origin, which includes tests for sarcoidosis, tuberculosis. But then it is better at that stage to send it to an infectious diseases specialist who can look into all these tests. As far as you are concerned, your main responsibility is to give Panadol to the patient, bed rest, high energy, lightly digested food, avoid greasy foods, do not give them laxatives for constipation because you may cause perforation of the intestine. How does the bacteria spread? It goes into the intestine, into the bloodstream. From the bloodstream, goes into the liver, is excreted by the bile duct, goes into the gallbladder. Gallbladder is a very important reservoir of typhoid germs. And that is why even when the infection of typhoid gets better, 3 to 5% people get into a carrier status. ये जो हमारे यहाँ इन्फेक्शन स्प्रेड होती है ये कैरियर से होती है, एक्टिव टाइफाइड पेशेंट से नहीं होती। जो कैरियर्स होते हैं वो कंटेमिनेट करते हैं फीकल कंटेमिनेशन के साथ वाटर एंड फूड को। तो इसलिए अगर आपने आप इससे प्रिवेंशन करनी है तो रॉ फूड नहीं खानी, वेल कुक्ड फूड खा सके, आपने वाटर को बॉयल करना है at least much over 100 degrees for some time to kill the germs, etc. Microwave will not kill typhoid germs. Please remember this. You can't just put the food in microwave and you think you're safe. So ये बड़ी एक fallacy है लोगों के दिमाग में। और raw fruit, vegetables, raw cut fruit ना खाएं, वगैरह cooked, well cooked food खाएं। ये चीजें general principles हैं। It takes about 3 days to 20 days of incubation period. Average incubation period typhoid का 7 days होता है, but it can be anything from 3 days to 20 days. Fever का जब आपने ingest किया food उसमें incubation period होता है। उसके बाद आपको step ladder पैटर्न से आपका फीवर बढ़ता है, यानी नॉर्मल नहीं आता, फीवर बढ़ता जाता है। और Malaise means tiredness, weakness, headache. It is out of proportion to the temperature. जिसको नकाहत कहते हैं मरीज को, नकाहत और कमजोरी बहुत ज्यादा होती है। तो मैं इस क्लिनिकल सिनारियो को दोबारा रिपीट करता हूं कि डायग्नोसिस के लिए प्लीज डू नॉट यूज टाइफी डॉट टेस्ट और वीडॉल टेस्ट। इसकी तफसील मेरी कॉलीग आपको ज्यादा बताएंगी, लेकिन आप टेस्ट अगर करना है तो CBC और ब्लड कल्चर करें। अगर आपके पास फीवर का कोई केस आता है तो वो मर नहीं जाएगा अगर इसको एंटीबायोटिक आप ना दें।
उसको ऑब्जर्व करें, उसके लोकलाइजिंग साइंस ढूंढें, कोई है चेस्ट एग्जामिन, लिवर फंक्शन टेस्ट आपके थोड़े रेज हो जाते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि उसको हेपेटाइटिस है. You should know these factors. Typhoid germs, when they go in bloodstream, they infect all the organs of, particularly gastrointestinal tract, respiratory tract, gallbladder also. Gallbladder की अहमियत क्या है कि कैरियर स्टेटस गॉल ब्लैडर से शुरू होता है. आप गॉल ब्लैडर में से जर्म निकालने बड़ा मुश्किल होता है. अगर 3 to 5% कैरियर्स होते हैं, इनकी डायग्नोसिस क्या होती है, आपने 2-3 कल्चर रिपीट करने हैं कपल ऑफ वीक्स के बाद. जब मरीज क्योर हो जाता है तो 2-3 हफ्ते इंतजार करें, फिर आप स्टूल कल्चर करें, फिर 2-3 हफ्ते इंतजार करें, फिर स्टूल कल्चर. अगर आपके 3 स्टूल कल्चर नेगेटिव होते हैं तो इसका मतलब है आदमी कैरियर नहीं है. अगर कैरियर स्टेटस पॉजिटिव होता है, मतलब कि वो कैरियर है जरासीम से, तो उसकी ट्रीटमेंट बड़ी प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट है. आपने हाई डोजेज ऑफ ऑगमेंटिन या एमॉक्सिल देनी पड़ेगी ओवर कपल ऑफ वीक्स, कम से कम 6 वीक्स तक, फिर जाके ये रेडिकेट होती है. तो ट्रीटमेंट ऑफ कैरियर्स इज वाइटल. इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूं कि हेटी एक जगह है वेस्ट इंडीज में, वहां पर लड़ाई हुई थी तो यूनाइटेड नेशन ने अपनी फोर्स भेजी थी. और हेटी ऐसी जगह है कि वहां कभी टाइफाइड नहीं हुआ और एकदम टाइफाइड का इंसिडेंस ज्यादा हो गया. उन्होंने डिटेक्ट किया कि ये कैसे हुआ. उन्होंने देखा कि नेपाल से एक कंटिंजेंट गई थी यूनाइटेड नेशन की, जो कि दरिया में जाके सुबह डेफिकेट करते होंगे, नहाते होंगे, जो भी, एंड दे स्प्रेड, दे वर कैरियर्स ऑफ टाइफाइड एंड दे स्प्रेड टाइफाइड इन हेटी एंड नाउ इट हैज बिकम एंडेमिक देयर. इसी तरह हिस्ट्री में एक सर्वेंट है, उसका नाम यूरोप में उसका नाम टाइफाइड मेरी रखा गया था. तो जिस घर में जाती थी वहां टाइफाइड थी, शी वाज अ कैरियर. तो टाइफाइड मेरी का जो इंसिडेंस है उसके बारे में पढ़िएगा. इरेडिकेशन ऑफ टाइफाइड कैरियर्स बहुत इंपॉर्टेंट. if you are not able to eradicate with 6 weeks of treatment, then cholecystectomy may even be required to eliminate the carrier status. तो ये एक ओवरऑल पिक्चर मैंने. अब जो फाइनल डिटेल्स वो आई वुड रिक्वेस्ट माय कॉलीग टू who is an internist specialist. Sir, we got few questions. हमसे सवाल पूछा गया है, how we differentiate COVID GI symptoms from typhoid. It is very difficult to distinguish, as I say. The way to distinguish is by doing the tests which I have told you. You do your CRP, you do LDH, you do ferritin. LDH and ferritin will not be disturbed in typhoid so much, because it is the coronavirus which affects the heme component of the blood and splits the heme into ferritin, and that ferritin levels are raised. They will not be raised in typhoid germ. So clinically, it is very difficult to do this. But otherwise, I mean, lab-wise, you have to do the test and distinguish. You do the stool test. You will find out that in coronavirus, there will be no indications of any infection. In typhoid, you might detect RBCs or you might detect pus cells. So the way to diagnose is to do a specific test. But clinically, you can't. That is why I said CBC, stool test, ferritin, LDH, CRP, and blood culture are the tests to be done. Okay. But no antibiotics till any result comes. Correct, correct. अच्छा, मैडम आपका माइक स्विच ऑफ है. Clinically, you can differentiate between COVID-19 disease and typhoid GI symptoms. Is the patient comes to you with GI symptoms and COVID usually have fever and high-grade fever. But if you notice in adults, typhoid में diarrhea adults में common नहीं है. They come to you with an abdominal pain, मगर diarrhea is not a common presentation of typhoid in adults. It is more common in children, especially between the age of 1 year to 10 years, mostly less than 5 years of बच्चे जो हैं, उनमें this is the common presentation of diarrhea. Diarrhea अगर आपको फीवर के साथ हो रहा है तो it's most likely because of the COVID in this season. Otherwise, if you notice, तो हमारे पास लोग बुखार के साथ आएंगे, मलेरिया के साथ आएंगे, जैसे डॉक्टर यूसुफ कमाल ने आपको बताया है, but they usually don't present with diarrhea. A few
percentage of people present to you with this. So in that Okay. case, you need to have क्या कहते हैं test to differentiate between these two. मैडम, I would like कि डॉक्टर यूसुफ के सेशन के बाद अब आप जो टॉपिक है उसको कवर करिए, जो कि आपकी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड भी है. So basically, I will touch upon the basis of the typhoid infection, and my game plan is next slide. Next slide. My game plan is the definition, a little bit of the history, as some of the points already Dr. Yousuf have shared with you, then epidemiology, and then by the next slide. By definition, जो भी कोई आपके साथ बुखार के साथ आपके पास आ रहा है जिसमें कोई फोकल सिम्टम्स नहीं है पेशेंट को, वो ज़्यादातर टाइफाइड होता है, ठीक है. और टाइफाइड जो है वो, जैसे डॉक्टर यूसुफ ने भी कहा, एक बैक्टीरियम से होता है जिसको हम साल्मोनेला टाइफी कहते हैं, और बहुत कम ऐसा होता है कि उसकी एक दूसरी टाइप है साल्मोनेला पैराटाइफी जो कि टाइफाइड कॉज करती है. हिस्ट्री में सबसे पहले जो टाइफाइड सस्पेक्टेड हुआ था वो एम्परर अगस्टस को हुआ था अराउंड 200,000 years back, राइट. और जो उनका रोमन फिजिशियन था एंटोनियस मूसा, उन्होंने उनको ठंडे पानी में जो है वो नहलाया था. दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि कोई ट्रीटमेंट किसी डिजीज के लिए किया गया था, बट अल्टीमेटली दैट एम्परर डाइड ऑफ एंटेरिक फीवर. Then a French scientist in 1829 diagnosed a typhoid and named it typhoid. क्यों रखा गया? बिकॉज उस वक्त जब टाइफाइड होता था तो वो क्लाउडीनेस या पेशेंट को डेलीरियम कॉज करता था बुखार के साथ. और टाइफस का मतलब फ्रेंच लैंग्वेज में ये है कि काले बादल का छा जाना, या उनका ख्याल था कि ये डिजीज ऐसी है जिसमें कि साया हो जाता है और इंसान जो है अपना ज़हनी तवाज़ुन खो देता है, इसलिए इसका नाम टाइफस से टाइफाइड रखा गया. Then comes the विलियम बर्ड, जिसने रिकॉग्नाइज किया कि ये फीको ओरल ट्रांसमिशन है, और वो भी दैट इज इन 1839 में. सो दिस डिजीज इज वेरी ओल्ड, ये अभी की डिजीज नहीं, बहुत पुरानी है. देन बर्लिन इंस्टीट्यूशन में फर्स्ट टाइम इस ऑर्गेनिज्म को कल्चर किया गया था, दैट इज इन 1884, और फिर 1896 में पैराटाइफॉइड जो है उसको आइसोलेट किया गया था, जबकि 1884 में साल्मोनेला टाइफी को आइसोलेट किया गया था. नेक्स्ट स्लाइड है. आपको डॉक्टर यूसुफ ने पहले ही बता दिया है टाइफॉइड मैरी के नाम से. टाइफॉइड मैरी बेसिकली एक कुक थी जो कि न्यूयॉर्क में 1906 में थी, और जब उन्होंने एक फैमिली के लिए कुक करना शुरू किया तो देखा कि उस फैमिली के लोग जो है ना वो तमाम बुखार के साथ आना शुरू हुए, और अल्टीमेटली उस फैमिली में टाइफॉइड जो है वो उसने एक एपिडेमिक की सूरत अख्तियार कर ली थी, ठीक है. तो जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला कि टाइफॉइड मैरी जो है दैट इज अ कैरियर पर्सन जो कि टाइफॉइड को कैरी करती हैं, और अनफॉर्चुनेटली चूंकि वो कुकिंग करती थी और वो प्रॉब्ली बाथरूम से आने के बाद हाथ नहीं धोती थी, जिसकी वजह से वो खाने के जरिए लोगों में स्प्रेड हो रहा था. तो इसको देखते हुए उन्हें जो है फौरन अरेस्ट किया गया, जेल में डाला गया, लेकिन समहाउ कुछ सालों के बाद वो जेल से किसी तरह से निकल गई और दोबारा एक नए नाम के साथ उन्होंने दूसरी जगह पे कुकिंग स्टार्ट की. मगर जहाँ पे भी कुकिंग स्टार्ट की अगेन उनके साथ वही हुआ कि लोग जो है फिर बीमार होना शुरू हुए. फिर इन्हें फाइनली अरेस्ट किया गया एंड शी जो है 26 इयर्स इन जो है वो क्वारंटीन, और अल्टीमेटली निमोनिया से इनकी डेथ हुई थी. मगर शी हैज इन्फेक्टेड अराउंड 53 पीपल एंड जिसमें से 5 का इंतकाल हो गया था. दैट्स व्हाई टाइफॉइड मैरी नाम है इनका कि जिन्होंने स्प्रेड किया था. सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री. अगर आप देखें तो आपको इन्फेक्शियस डिजीजेज में बहुत सारी इस तरह की इंटरेस्टिंग हिस्ट्री जो है वो मिलेंगी. नेक्स्ट स्लाइड. एपिडेमियोलॉजी में जैसे पहले भी बताया गया है कि ऑलमोस्ट तकरीबन 20 to 27 मिलियन एनुअली केसेस होते हैं. साउथ एशिया और सब सहारन अफ्रीका में सबसे ज्यादा हाई इंसिडेंस है, जिसमें कि 1000 केसेस पर 100,000 पर्सन ईयर्स है, जो कि बहुत ज्यादा हाई रेट है. जबकि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्दर्न अफ्रीका, साउथ अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया में केसेस काफी कम है. वर्ल्ड वाइड अगर आप नोट करें तो टाइफॉइड उन एरियाज में ज्यादा होता है जहाँ पे मैलनरिशमेंट है और पुअर सैनिटेशन है, या पॉवर्टी बहुत ज्यादा है,
लोग एक घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, गंदगी बहुत ज्यादा है, ऐसी जगहों पे है वो ज्यादा से ज्यादा ये डिजीज जो फ्लरिश करती है। ह्यूमन रिजर्वायर्स हैं सिर्फ, इसके एनिमल रिजर्वायर्स नहीं है, सो इट्स नॉट अ ज़ूनोटिक डिजीज, बेसिकली इट्स अ ह्यूमन डिजीज, ठीक है। और देखा जाए तो दुनिया भर में बच्चे बड़ों के मुकाबले में इससे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। ये मैप है डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें आप देख सकते हैं पीछे वाली स्लाइड। ये मैप है जिसमें आप देख सकते हैं कि आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, जो हमारे साउथ एशिया की कंट्रीज हैं, उसमें आपको नजर आएगा कि केसेस जो हैं वो मैक्सिमम है, दैट इज 1000 केसेस जो मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ट्रांसमिशन बेसिकली फीको ओरल ट्रांसमिशन है, और चूंकि हमारा पानी जो है आपने देखा होगा कि बेसिकली प्रॉपर्ली क्लोरीनेटेड नहीं है, जिसकी वजह से ये ऑर्गेनिज्म टाइफॉइड का, इकोलाई और पोलियो, ये सब जरासीम हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पानी में मौजूद है, ठीक है। अब ये पानी अनफॉर्चुनेटली जो है कराची में जो है सिवेज वाटर से, आपको पता है मलीर में वेजिटेबल्स जो है उनको ये दिया जाता है, गार्डन्स में दिया जाता है। इसके अलावा जो बर्फ बनती है, जो बड़े लेवल पे हम लोग बर्फ बाहर से लेते हैं, ठीक है, जो स्लैब्स हैं, आइस स्लैब्स, वो भी टैप वाटर के बनते हैं। तो इन तमाम चीज़ों में जो है ये टाइफॉइड ऑर्गेनिज्म जो है वो मौजूद है। जैसे पोल्ट्री है, हमारी वेजिटेबल्स हैं, हमारे आइस बेवरेजेस हैं, इन सब में टाइफॉइड का ऑर्गेनिज्म मौजूद है, बिकॉज एक्सक्यूज मी, ये सबके सब टैप वाटर यूज करते हैं जिस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला, जिसमें कि ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी मौजूद है। हमारी जो एशियन कंट्रीज है उसमें पीक ट्रांसमिशन, ऑल्दो कि सारा साल आपको टाइफॉइड मिलेगा, लेकिन पीक ट्रांसमिशन यूजुअली मॉनसून सीजन के बाद आती है, जिसमें कि गंदगी अपनी इंतहा को होती है। जितने हमारे, आपको पता है ये एरियाज हैं, हम सारा अपना जो कचरा है वो बाहर फेंकते हैं, जिसकी वजह से पानी होता है, मक्खियाँ होती हैं, हमारे हमारी जो सीवेज लाइन्स है वो हमारी ड्रिंकिंग वाटर के साथ मिक्स हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से हमारा वाटर जो है वो कॉन्स्टेंटली कंटेमिनेट होता है सीवेज वाटर के साथ। तो ये सारा साल हमारे पास रहता है, लेकिन मानसून सीजन के पास ये बढ़ जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। मॉर्फोलॉजी बेसिकली सैल्मोनेला, एंटेरिका, सेरोटाइप, टाइफॉइड, टाइफी है, जिसको हम लोग सैल्मोनेला टाइफी कहते हैं। दूसरी टाइप जो है वो दूसरे इन्फेक्शन भी कॉज करते हैं, लेकिन लेसर एक्सटेंट तक टाइफॉइड कॉज करते हैं। ये बेसिकली मोटाइल ग्राम नेगेटिव ब्रॉड है। अगर हम इसको कल्चर पे ग्रो करें तो ये ग्राम नेगेटिव ब्रॉड्स हैं जो कि पिंक कलर लेते हैं और मूव करते हैं। जैसे डॉक्टर यूसुफ ने कहा कि इसमें फ्लैजुला होता है, जो एंटीबॉडीज बनती है हमारी बॉडी। नेक्स्ट स्लाइड। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन में सिंपल आपके पास पेशेंट प्रेजेंट करेगा, फीवर के साथ है, फ्लू लाइक सिम्टम्स हो सकते हैं, दर्द है, थकावट, भी पेशेंट जो है वो कंफ्यूजन के साथ आपके साथ का बुखार है लेकिन अजीब सी बातें करें, कुछ समझ में नहीं आना, खासतौर पे वो लोग जिनकी एज ज्यादा होती है, वो इस तरह से प्रेजेंट अनप्रोडक्टिव कॉफ के साथ आपके पास प्रेजेंट कर सकते हैं, और एब्डोमिनल कॉम्प्लिकेशन के साथ जिसमें डायरिया, कॉन्स्टिपेशन या एब्डोमिनल पेन है। ये एब्डोमिनल पेन ज्यादातर कॉमन प्रेजेंटेशन है एडल्ट्स में, लेकिन डायरिया इज मोर कॉमन इन द चिल्ड्रन, एज मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। नेक्स्ट स्लाइड। फिजिकल साइंस में सब चीजें नॉन स्पेसिफिक होती हैं। इट्स अ रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया, जिसका जिक्र किया था, मतलब ये कि जितना बुखार है हमारा पल्स रेट उतना नहीं है। हमारे 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 के करीब पल्स हमारा बढ़ना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें जब हम देखते हैं तो हमारी पल्स रेट बहुत कम होता है, लेकिन पेशेंट को बुखार होता है। दिस इज कॉल्ड अ रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। रॉट स्पॉट्स जो है वो हमारी बॉडी में शुरू के 2 से 3 दिन के अंदर अपेयर होते हैं। ब्लैंचिंग स्पॉट्स होते हैं जो कि एंटीरियर चेस्ट बैक प्रेजेंट होंगे, तो अगर अमूमन मिलते नहीं है हम लोग, इफ यू ट्राई टू लुक फॉर दैम, टेंडरनेस मिल सकती है। समटाइम्स अगर फीवर को थोड़ा सा ज्यादा टाइम हो गया तो वी कैन गेट हेपेटोस्प्लीनोमेगाली, ठीक है। इसके अलावा बहुत कॉमन चीज होती है कि आप जबान देखेंगे तो व्हाइटिश या येलोइश ब्राउन कोटिंग होती है सेंटर ऑफ द टंग पे, जबकि लेटरल पार्ट जो टंग है के हमारे
वो यूजुअली क्लियर होते हैं, जिसको हम कोटेड टंग कहते हैं। ये भी हमें जो है वो सैल्मोनेला की प्रेजेंटेशंस में मिलती हैं। नेक्स्ट स्लाइड। लेबोरेटरी फाइंडिंग्स फॉर अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस में कोई WLC TLC बढ़ा हुआ नहीं होता, न्यूट्रोफिलिया नहीं होता है, और ना ही हमारे पास इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स आते हैं, बल्कि हमारे पास आते हैं ल्यूकोपीनिया के साथ कि TLC काउंट नॉर्मल होगा या कम होगा। ल्यूकोपीनिया का मतलब है कि TLC काउंट कम है हमारा, ठीक है। बाकी चीजें अमूमन नॉर्मल ही होती हैं, लेकिन इसमें एक चीज जो नोट की जाती है वो कि इसमें लिवर का जो फंक्शन है वो स्लाइटली खराब होता है। आपका SGPT और SGOT जो है वो स्लाइटली बढ़ा हुआ होगा, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिएंट ट्रांसएमिनेसिस एलिवेशन। ये हमको मिलेगा, ये अमूमन हमको वायरल इन्फेक्शन में भी मिलता है और टाइफाइड के साथ भी मिलता है हम लोगों को। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अगर पेशेंट कोई आपके पास आता है तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे फीवर बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, और 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है, उसको पेट में दर्द है या हाथ लगा रहे हैं तो पेट को हाथ नहीं लगाने दे रहा, बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन है या ब्लडी डायरिया उनको हो रहा है, ठीक है। पेशेंट जो है वो बहुत टॉक्सिक अपीयरेंस देगा। एग्जामिनेशन पे हेपेटोस्प्लीनोमेगाली है, क्योंकि अब 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है पेशेंट को, तो अब हेपेटोस्प्लीनोमेगाली हमें मिल सकती है और पेशेंट हमें टॉक्सिक लुक दे रहा है। नेक्स्ट। नेक्स्ट स्लाइड। कॉम्प्लिकेशन में अगर हम देखें तो सबसे पहले GI कॉम्प्लिकेशन आएगी हमारे पास। 10% यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग होती है, जैसे जिसमें कि डायरिया या कॉन्स्टिपेशन है, लेकिन अगर देखा जाए तो 3% लोग जो है वो फेटल इंटेस्टाइनल परफोरेशन के साथ आते हैं। और हम सबको पता है कि जब हम ऑर्गेनिज्म इंजेस्ट करते हैं तो हमारे इंटेस्टाइन में जो हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं, जिसको हम फायर पैचेस कहते हैं, वहां पे ऑर्गेनिज्म एंटर होता है बॉडी में, और वहां से ये जो है वो बाकी गट से होता हुआ दूसरे ऑर्गन्स तक जाता है। तो जो हमारी गट होती है उस एरिया पे जहाँ पे फायर पैचेस होते हैं वहां पे बहुत फ्रेजाइल हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी परफोरेशन के बहुत चांसेस होते हैं। खास तौर पे अगर हम कॉन्स्टिपेशन के लिए परगेटिव्स दे दें तो डायरिया स्टार्ट हो जाएगा, तो वो फ्रेजाइल गट को और ज्यादा परफोरेट करने के चांसेस बढ़ा देगा। इसके अलावा पेशेंट जो है वो जॉन्डिस के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं, 1 to 3% है। और जैसे आपको बताया सब क्लिनिकल हेपेटाइटिस होता है जो कि इसके साथ हो सकता है। समटाइम्स प्रेजेंट टू यू पेशेंट विद एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, ठीक है, क्योंकि गॉलब्लैडर में ऑर्गेनिज्म जा रहा है तो वहां पे जाके एक्यूट इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। तो समटाइम्स पेशेंट प्रेजेंट टू यू विद एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। नेक्स्ट स्लाइड। न्यूरोलॉजिकल, जैसे मैंने बताया इसका टाइफॉइड नाम इसी रखा था कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कॉज करता है। तो हल्की सी डिसोरिएंटेशन, कंफ्यूजन से लेकर के सीवियर कोमा तक या डिसोरिएंटेशन तक ले जा सकता है। बच्चों में सीजर्स बहुत कॉमन है, मेनिंजाइटिस बहुत कॉमन है, और कभी कभी ये GBS कॉज करता है। GBS सबको मालूम है कि GBS में हमारी बॉडी के जो है वो पैरालाइज हो जाती है और असेंडिंग पैरालिसिस होता है। सबसे पहले हमारी टांगें कमजोर होना शुरू होती है, उसके बाद हमारे हाथ और फिर बाकी जिस्म कमजोर होना शुरू हो जाता है और फिर वो काम नहीं कर पाता, तो इसको हम GBS कहते हैं। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स खासतौर पर बच्चों में ज्यादा कॉमन है, एडल्ट में सिर्फ माइल्ड कॉफ होती है, लेकिन ब्रोंकाइटिस एंड निमोनिया के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है अगर अनट्रीटेड है। नेक्स्ट स्लाइड। क्लिनिक, अब पेशेंट को टाइफॉइड था, पेशेंट टाइफॉइड मिस हो गया, प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं हुआ या पार्शली ट्रीट हुआ, व्हाटएवर चीजें थी। समटाइम्स पेशेंट आपके पास कॉम्प्लिकेशन के साथ प्रेजेंट करता है कि जी 4 हफ्ते 5 हफ्ते पहले बुखार हुआ था, बुखार ठीक हो गया, लेकिन अब मेरा वजन कम हो रहा है, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो पेशेंट में है पाइमा। एम्पाइमा है, जो कलेक्शन हुई है फ्लूइड की यहाँ पर, वो पास में कन्वर्ट हो गई है। ऑस्टियोमाइलाइटिस, जिसको हड्डियों का इंफेक्शन कहते हैं, दैट इज वेरी कॉमन। मसल एब्सेस, यानी कि पस मसल्स में जमा हो गई है, खासतौर पे जो श्वास मसल्स हैं हमारे एब्डोमेन के, जो कि हमारे एब्डोमिनल वॉल से पीछे लेग्स तक जाते हैं, उसमें बहुत कॉमन है इसके कलेक्शन। पेशेंट को एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। तो ये पायोजेनिक कॉम्प्लिकेशन बहुत, अगर अनट्रीटेड केस है तो पायोजेनिक कॉम्प्लिकेशन कॉमन है ऐसे लोगों में, ठीक है। नेक्स्ट।
बच्चों के लिए थोड़ा सा बात करते हैं। तो बच्चों में हमारे पास स्कूल गोइंग एज जो है उसमें काफ़ी केसेस रिपोर्टेड होते हैं, 4 times हायर देन द एडल्ट। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, कॉम्प्लिकेशन और सब चीज़ें बच्चों में और बड़ा दोनों में डिफरेंट है, लेकिन बच्चों की अगर आप ग्रुप है 5 साल से कम और 5 साल से ज़्यादा, तो ये इसमें भी डिफरेंट है। मोर्टालिटी रेट जो है वो 4 times हायर है उन बच्चों में जो कि 5 साल से कम है एज कम्पेयर टू वो बच्चे जो कि 5 साल से ज़्यादा के हैं। नेक्स्ट स्लाइड। क्योंकि आप लोग जीपी से आपके पास बच्चे भी आते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि बच्चे किस तरह से आ सकते हैं। सबसे पहले जो पीडियाट्रिक कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन है दैट इज अ फीवर। 97% to 100% लोग जो हैं बच्चे आपके साथ पास बुखार के साथ आएंगे, ठीक है। और हो सकता है जो छोटी उम्र के बच्चे जिनको हम इन्फेंट्स कहते हैं या 1 से 2 साल के बच्चे हैं वो आपके पास हाइपोथर्मिया के साथ आए, मतलब उनका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से कम हो। हम हाथ लगा रहे हैं तो बच्चे ठंडे हैं, ठंडा है तो इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द बच्चा, नॉर्मल टेम्परेचर नहीं है इस बच्चे का। जैसे एडल्ट्स में भी ऐसा प्रेजेंटेशन होती है कि हाइपोथर्मिया के साथ आते हैं, ठीक है। तो वी शुड लुक फॉर द हाइपोथर्मिया इन अ चिल्ड्रन लेस देन 5 years. It's a very important finding for enteric fever. बच्चे presents to you with diarrhea, which is 2.5 times common than the adult या बड़े बच्चों के मुकाबले में। Chills and wriggles and relative bradycardia बच्चों में common नहीं होता, so don't look for a bradycardia in बच्चे, ठीक है। It is more common in adults than in the children. Paralytic ileus is also common क्योंकि बच्चों की गट में जो है वो पैरालिटिक आइलियस से बाद परफोरेशन कॉमन हो जाती है, तो बच्चे ज्यादातर परफोरेशन या पैरालिटिक आइलियस के पास हमारे पास आते हैं जिसमें वॉमिटिंग है परसिस्टेंट, ठीक है। एब्डोमिनल टेंडर है, एब्डोमिन जो है वो डिस्टेंडेड है, तो पैरालिटिक आइलियस इज वन ऑफ द प्रेजेंटेशन जिसके साथ बच्चे आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। सीजर्स के साथ बच्चे प्रेजेंट करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया बच्चों में हेपेटोस्प्लीनोमेगाली, लिवर का इलाज होना और स्प्लीन का इलाज होना बड़ों के मुकाबले में बहुत कॉमन है। 85 to 90% चांसेस हैं कि बच्चा आपके पास हेपेटोस्प्लीनोमेगाली के साथ आए या इनमें छोटे छोटे एब्सेसेस के साथ आए, क्योंकि ये बैक्टीरिया है तो ये पस बनाएगा। तो जैसे मैंने कहा कि पायोजेनिक कॉम्प्लिकेशन एडल्ट्स में बताई थी, बच्चों में हेपेटिक या स्प्लेनिक एब्सेसेस के साथ ये प्रेजेंट कर सकता है, बच्चों में ब्रोंकोनिमोनिया के साथ ये प्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। और बच्चों में ट्रांजिएंट पैनसाइटोपिनिया के साथ प्रेजेंट कर सकता है। पैनसाइटोपिनिया का मतलब ये है कि उनका हीमोग्लोबिन भी कम होगा, नॉर्मल से बहुत कम होगा, टीएलसी काउंट भी 2 से कम होगा और प्लेटलेट काउंट भी नॉर्मल से कम होंगे। अगर कोई बच्चा आपके पास आ रहा है जिसका फीवर है और आपने सीबीसी करवाया है और उसमें ये तमाम सेल लाइंस जो है डिप्रेस आ रही हैं, थिंक ऑफ द टाइफॉइड इन दैट चाइल्ड, राइट। लेकिन ल्यूकोसाइटोसिस के साथ भी आ सकते हैं। एडल्ट्स के मुकाबले में बच्चों में ल्यूकोसाइटोसिस ज्यादा कॉमन है। सो बड़ों में तो हम कहते हैं ना कि बुखार है, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया है, सीबीसी में आपका नॉर्मल टीएलसी काउंट है, तो वो आपको एंटेरिक की तरफ पॉइंट आउट करता है, लेकिन बच्चों में आपके पास जो है वो ल्यूकोसाइटोसिस ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन ट्रांजिएंट पैनसाइटोपिनिया के साथ भी ये प्रेजेंट कर सकते हैं। सो टाइफॉइड कहने को टाइफॉइड है, लेकिन जो कि बहुत कॉमन डिजीज है हमारी कंट्री का, और हम हर एक जो है वो डेली बेसिस पे पता नहीं कितने पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, मगर टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रेजेंटेशन। तो आपको अपना माइंड ओपन रखना है कि हाँ ये टाइफाइड हो सकता है, इवन निमोनिया में भी बच्चों के अंदर खास तौर पर, ठीक है। और टाइफॉइड अगर बार बार किसी को हो रहा है, एडल्ट है, 40 ईयर्स से ज्यादा है, तो गो फॉर सीटी स्कैन ऑफ द एब्डोमेन, क्योंकि एंडोकार्डाइटिस के बाद जो है वो माइकोटिक एन्यूरिज्म एब्डोमिनल एओर्टा का बहुत कॉमन है जो कि ये कर सकता है, जो मेरी प्रेजेंटेशन में नहीं था। सो इट हैड अ वाइड रेंज ऑफ प्रेजेंटेशन एंड वी हैव टू ओपन आवर माइंड, लाइक बिल्कुल दिमाग खुला रखना है कि हाँ ये है, ऐसा नहीं कि नहीं जी रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया नहीं है, टीएलसी भी नॉर्मल है तो टाइफॉइड की पॉसिबिलिटी नहीं है, पेशेंट जो है वो इस तरह से प्रेजेंट किया है। नो, टाइफॉइड कैन प्रेजेंट लाइक एनीथिंग, लाइक, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। So this is the end of my slides, but I would like to touch upon the diagnosis, जिसमें कि हमारे पास एक आता है टाइफी डॉट और विडॉल बहुत कॉमन है।
हमारे पास जितने पेशेंट्स आते हैं, और आजकल कोविड के साथ तो सब आ रहे हैं जो टाइफाइड और विडॉल लेके आ रहे हैं। टाइफाइड और विडॉल जो है वो बहुत साल पहले जो है वो दुनिया भर में खत्म हो गए थे, बिकॉज इनकी वैलिडिटी कोई नहीं है, इनकी कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है, ना इनकी कोई लैब स्टैंडर्ड्स हैं या लैब सेट आउट है। ये सब के सब हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करते हैं या जो उनके एंटीजेंस के अगेंस्ट बनी है, मगर अनफॉर्चुनेटली आपको एक टेस्ट नहीं करवाना है। अगर आप टाइफाइड करा रहे हैं तो उसमें ड्राइजिंग जो ट्रेंड है दैट इज इम्पोर्टेंट। अगर बचपन में भी आपको ये टाइफाइड हुआ था तो टाइफी डॉट और विडॉल आपका पॉजिटिव आ सकता है। इसीलिए आपके पास बहुत सारे मरीज आते होंगे, डॉक्टर साहब जो हमारे पास प्रेजेंट करते हैं, डॉक्टर साहब हर साल मुझे टाइफाइड होता है, मुझे हर साल टाइफाइड का ट्रीटमेंट दिया जाता है, और जब आप देखें तो वो टाइफी डॉट और विडॉल करवा रहे होते हैं। So the important thing is the gold standard to diagnose the typhoid is blood culture, not the typhoid or vidal. पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि लोग जितना आप लोगों की सुनते हैं वो हमारी नहीं सुनते, बिकॉज आप लोग उनके प्राइमरी फिजिशियंस हैं। But you say that counts more for them as compared to us. हम कहेंगे तो वो कहेंगे कि अच्छा हम अपने फैमिली डॉक्टर को दिखा के आएंगे फिर आपकी दवा लेंगे, that is for sure. So आप अपने पेशेंट्स के को बहुत इजीली काउंसिल कर सकते हैं कि देखें बुखार की वजह पता नहीं चल रही है, टाइफाइड लग रहा है लेकिन मैं ब्लड कल्चर करवाऊंगा। Don't give antibiotics without sending the blood culture. Please, this is a very important message of और XDR की कॉम्प्लिकेशंस बहुत सीवियर है। अगर हम लोग से मिस हो जाता है XDR और वो बाद में पिक होता है तो पेशेंट जो है वो हमारे हाथ से निकल भी सकता है, जो कि एक बहुत बड़ी एक अनफॉर्चुनेट बात होगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ब्लड कल्चर लें। ब्लड कल्चर के लिए आपके लिए जरूरी है कि जिस लैब में भी भेजें वो स्टैंडर्डाइज्ड लैब को जो कि प्रॉपरली ब्लड कल्चर कर रही है वहां से करवाएं। फिर आप उनको पैनाडोल दें, और अगर ज्यादा फीवर है तो आप उनको एंटीबायोटिक स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी हमारी कंट्री में 60% जो XDR जो सैल्मोनेला है या टाइफाइड है दैट इज सेंसिटिव टू सेफ्ट्राइजोन। ठीक है, तो यू कैन स्टार्ट देम ऑन सेफ्ट्राइजोन विद अ प्रॉपर डोज, और उसके बाद कल्चर्स की रिपोर्ट के हिसाब से आप उसे टेलर कर सकते हैं। बस प्लीज डोंट डू टाइफाइड और विडॉल टेस्ट इन द पेशेंट्स विद फीवर। Always go for a blood culture, which is a gold standard in the diagnosis. डॉक्टर कमाल यूसुफ ने आपसे ऑलरेडी आपसे XDR और MDR की बात कर चुके हैं। तो MDR में हमारे पास बहुत बड़ा हथियार था सिप्रोफ्लॉक्सासिन, जो कि अनफॉर्चुनेटली इतना ज्यादा उसका इनएप्रोप्रिएट यूज हुआ है कि वो हमारे एशिया में 90 था, तो हमारे ओरल ऑप्शन जो है वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। देन कम्स द सेफ्ट्राइजोन की भी इनअप्रोप्रिएट डोज देने की वजह से हमने उससे भी हाथ धो बैठे हैं, इनअप्रोप्रिएट यूज एंड इनअप्रोप्रिएट डोजेज की वजह से। नाउ वी आर लेफ्ट ओनली विद 2 ऑप्शंस। ओरल में एजिथ्रोमाइसिन है और आईवी में हमारे पास कार्बापेनम है, अनफॉर्चुनेटली मीरोपेनम आप 2000 to 3000 पर इंजेक्शन कॉस्ट है, तो एटलीस्ट आपके 6000 मिनिमम एक दिन के लगेंगे। सर उसको 14 डेज से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉस्ट अराउंड 65 to 75,000, which is not easy to afford because we are paying from our pockets. इस वजह से हमारी जेब पे बहुत भारी पड़ता है। दूसरा ऑरल ऑप्शन हमारे पास था जो कोविड की वजह से हुआ है, जिसमें हमें खर्चा है कि शायद we'll lose our मैक्स against our XDR salmonella। अल्लाह ना करे ये वक्त आए, क्योंकि XDR salmonella के लिए एजिथ्रोमाइसिन अभी भी बहुत इफेक्टिव है। और सेकेंड चीज प्रिवेंशन पे आ गए तो हमें अपने हाथ बहुत फ्रीक्वेंटली वॉश करने हैं। हाथ से खाने से पहले, खाना बनाते वक्त हम जो कटिंग बोर्ड्स यूज आजकल घरों में बहुत यूज होते हैं, तो कोशिश कीजिए कि हमारा जो मीट का या पोल्ट्री का कटिंग बोर्ड है वो वेजिटेबल वाले से डिफरेंट हो। एवरी टाइम यूज से पहले आप उसे वॉश करें, यूज के बाद वॉश करें। वेजिटेबल्स चूँकि हम लोगों की अब सीवेज वाटर यूज होता है उसके लिए, तो बेहतर है कि जितनी वेजिटेबल्स आपके पास आती है उसे रॉ ना खाएं, और अगर खा रहे हैं तो डेप देम इन अ
जिंजर वाटर, मतलब सिरके वाले पानी में कुछ देर डिप करें ताकि जरासीम मरे, एंड देन यू विल बी एबल टू कंज्यूम दैम। ठीक है, प्रॉपरली कुक मील लें, हाफ कुक मील नहीं लें, क्योंकि हमारी पोल्ट्री में सैल्मोनेला है। अंडा लोगों का बहुत शौक होता है हाफ बॉयल खाने का, इस तरह से अंडा जो है वो आप प्रॉपरली कुक करके खाएं, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बिग सोर्स ऑफ सैल्मोनेला। बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं तो सब हम तो साफ सुथरे हैं, हम तो ऐसे करते हैं, हम तो वैसे करते हैं, फिर हम कैसे जो है वो हो गया। मे बी यू आर यूजिंग वन ऑफ दोज आइटम्स जिसमें कि सैल्मोनेला हार्बर कर रहा है। So this is a few tips to prevent yourself from getting the typhoid infection, which is yet very related to very high mortality in our community. ठीक है, ऑल्दो के बहुत सारे एंटीबायोटिक्स आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग प्री एंटीबायोटिक एरा में जा रहे थे, जिसमें एम्परर अगस्टस था, और उस एरा में जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास एंटीबायोटिक्स बिल्कुल खत्म हो रही हैं। हमको बहुत सोच समझ के एंटीबायोटिक्स यूज करना। हर बुखार में एंटी मलेरियल, टाइफॉइड और ये सब चीज़ें ट्रीट ना करें, बल्कि पहले बुखार का डायग्नोसिस करें कि बुखार किस वजह से है, उससे ट्रीट करें, ताकि हम पेशेंट्स के पैसे भी बचा सकें और पेशेंट्स को अननेसेसरी जो हम लोग उनको एक्सपोज करें एंटीबायोटिक से, उससे भी प्रिवेंट कर सकें, और जो है वो एंटीबायोटिक के जो साइड इफेक्ट्स हैं या दूसरी मेडिसिन से जो साइड इफेक्ट्स हैं, उनसे भी पेशेंट को प्रिवेंट कर सकें। थैंक यू। Thank you so much, madam, for putting light in depth. बहुत ही डिटेल डिस्कशन रहा आपका। We have few questions. उससे पहले जाहिर है आप खुद आईडी इन्फेक्शन डिजीज लियाकत नेशनल हॉस्पिटल के साथ एसोसिएटेड है एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, तो वी वुड लाइक के ये जानना चाहेंगे कोई आईडी रजिस्ट्रेशन है आपकी कि लोग एक्सडीआर टाइफॉइड केसेस को रिपोर्ट कर सकें? एज सच नहीं है, लेकिन इट्स बेटर कि अगर आपके पास XDR आ रहा है तो सेंड देम टू द टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स के जो डेजिग्नेटेड इन्फेक्शियस डिजीज डिपार्टमेंट है, वहाँ पे आप पेशेंट्स को भेजें। आपको तमाम बड़े हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट में भी, एज वेल एज अब तो गवर्नमेंट सेक्टर इन्फेक्शियस डिजीज का डिपार्टमेंट है, सिविल में है, ट्रॉमा सेंटर में है, ओझा में है, हर जगह पे आपके पास अब डॉक्टर्स मौजूद हैं। Let them treat these patients, ताकि अगर खुदा न खास्ता कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो हम उनको टाइमली ट्रीट करें, टाइमली उनको देख लें और एक कीमती जान को बचा सकें। ओके, थैंक यू। डॉक्टर यूसुफ कमाल के लिए क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें पूछा गया है कि हाउ कॉमन आर सुपर इन्फेक्शंस विद टाइफॉइड? जी, आई थिंक इट इज, देखिए बेसिकली बिफोर आई आंसर दैट क्वेश्चन, एक दो चीजें मैं जरूर कहूंगा जो कि ओवरऑल टाइफाइड में आप देखें। देखिए, ह्यूमंस आर द ओनली सोर्स ऑफ टाइफाइड, प्लीज रिमेंबर दैट। नो, इट्स नॉट जूनोटिक, और वी आर द ओनली सोर्स ऑफ होल्डिंग द टाइफाइड जर्म्स। सो हमने तो आज सुपर इन्फेक्शंस और एंड रिजल्ट की बात की, एक दो लाइनें में जरूर प्रिवेंशन की भी जरूर करूंगा, क्योंकि आप प्रिवेंट नहीं करेंगे तो ट्रीटमेंट अगर XDR MDR की बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। तो प्रिवेंशन में दो चीजें हैं। इम्यूनाइजेशन, आपको पता है XDR के लिए इंडिया ने एक वैक्सीन बनाई है, जो कि आपकी जो टेटनस इस बार की जो वैक्सीन है, उसमें उन्होंने एक VI एंटीजन डाल दी है, और उसके साथ टाइपी बार वैक्सीन बनाई है। टाइपी बार से WHO ने पाकिस्तान में ओवर 60-70,000 और इवन मोर बच्चों को उससे इम्यूनाइज किया है। तो दैट प्रिवेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी टाइफाइड ओरल वैक्सीन लाइक वैक्सीन और डेड बैक्टीरिया की वैक्सीन। दिस टाइपी बार इज अ वेरी स्पेसिफिक वैक्सीन XDR के अगेंस्ट। तो एक तो ये प्रिवेंटिव स्टेप बड़ा जरूरी है कि अगर जहां एंडेमिक एरिया हो तो वहां टाइपी बार वैक्सीन यूज करें, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी इन्फेक्शन हो तो आपकी इम्यूनिटी कम होगी। जब इम्यूनिटी कम होगी तो आपको सेकेंडरी इन्फेक्शंस होंगी, जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने बड़ा क्लियरली कहा है, आपको एंडोकार्डाइटिस हो सकती है, आपको लिवर एब्सेस हो सकती है, आपको पेरिटोनाइटिस हो सकती है, आपको कई चीजें हो सकती हैं। तो वंस योर इम्यूनिटी इज लेस,
and you are already getting antibiotics and your intestinal immunity is also finished, so you are liable to get pneumonias, you're liable to get osteomyelitis, perforation of intestine, endocarditis, and even encephalitis and so many other infections. तो बेसिकली इम्पोर्टेंट चीज है कि टाइफाइड का मरीज आए तो जैसे डॉक्टर साहबा ने भी कहा है, अगर पहले कल्चर हमने जरूर भेजना है, क्योंकि कल्चर में हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि एमडीआर या एक्सडीआर टाइप की इन्फेक्शन है। अगर वो एमडीआर के स्टेज में है तो हम, अगर सीवियर है, देखिए डोज पर डिपेंड करता है, द इन्फेक्शन कैन बी low, it can be medium and can be high depending upon the age of the person, the comorbids and the number of bacteria which are ingested. तो उसके मुताबिक आप उनको ट्रीट करेंगे। अगर एमडीआर है तो आप इवन विद इन 3 days, आपको पता है अगर 2-3 grams ऑफ सेफिट्रॉक्सन दें तो आप इन्फेक्शन को इरेडिकेट कर सकते हो इंट्रावेनस। लेकिन अब जो खतरनाक चीज है, और ये प्रोविंस ऑफ सिंध में है पर्टिकुलरली, और वो एक्सडीआर है, तो आई री एम्फसाइज कि अगर एक्सडीआर का केस आए, it must be reported to infectious diseases people so that they can properly treat them with the appropriate antibiotic. लेकिन अगर आप अपनी प्रैक्टिस में हैं and if you are not sure कि क्या दवाई देनी है, तो कल्चर भेज दें, आप उसको ट्रीट करें इम्यूनिटी, और उसको अजिथ्रोमाइसिन से शुरू करें with a loading dose of 1 gram for 2-3 days and then continue it up to 10 days depending upon the result of the culture. So secondary infection, yes, जितना आप इफेक्टिवली प्राइमरी को ट्रीट करेंगे उतना सेकेंडरी इन्फेक्शन कम हो। रिलैप्सिंग टाइफाइड भी हो जाती है, 2-3 हफ्ते के बाद रिलैप्सेस हो सकती हैं, बट अगेन आई एम्फसाइज कि ह्यूमंस आर द सोर्स, so please do not think that your responsibility is complete by treating typhoid cases for 10 days. You have to look for carriers. 3 to 5% people go into carrier status, and the carriers are the ones which are responsible for spreading the infection. So please, nobody focuses on the carrier. Na kisi talk mein, na kisi speech mein. So please, carriers are the important, and carriers are detected by doing stool culture 3 times after the person is cured. At least 3 weeks interval पर आप 3 दफा कल्चर करवाएं। अगर 3 दफा कल्चर नेगेटिव हो तो फिर आदमी इफेक्टिवली कैरियर स्टेटस से बच सकता है, और बाद दफा आपको गॉल ब्लैडर भी रिमूव करना चाहिए। तो अल्टीमेटली मेरा पार्टिंग मैसेज है कि your responsibility as physician is not complete just by treating typhoid cases. You have to detect carrier status, and carrier status अगर positive हो तो उसके लिए बड़ी heavy dose of amoxicillin या augmentin आपको over couple of weeks, 6 weeks तक देनी है। जब तक ये मैसेज बड़ा important है, because it is the carriers who spread the infection. Please remember, carriers spread the infection. Another thing which is very important, another thing which is very important to understand कि आप और करें कि 2 से 3 दिन की एंटीबायोटिक्स फीवर नहीं उतरेगा। अगर टाइफाइड का फीवर है, इट विल टेक सम टाइम्स टू गो अवे। आपने पेशेंट को 2 बातें बतानी है जो कि फीवर के लिए उसे नोटिस करना है, वरना आपके पास तीसरे दिन पेशेंट आएगा, डॉक्टर साहब बुखार नहीं उतरा, बुखार नहीं उतरेगा आपका। आपने 2 चीजें नोट करनी है, फीवर की इंटेंसिटी कम हो गई है, जैसे पहले 102, 103 बुखार आ रहा था, अब 101 बुखार आ रहा है, या पहले दिन में 4 दफा आ रहा था, अब 2 दफा आ रहा है, तो मीन्स यू आर इन अ राइट डायरेक्शन। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो एक्जिया साल्मोनेला का फीवर है वो दैट इज अराउंड 8 to 9 डे पे जाके कम होना शुरू हो रहा है। इवन ऑन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है एंटीबायोटिक्स को एस्केलेट ना करें, चेंज ना करें, और लेकिन ऑलवेज लुक फॉर अ कॉम्प्लिकेशन की कोई कॉम्प्लिकेशन तो उसे डेवलप नहीं हो रही जिसकी वजह से ये फीवर आ रहा है। इट्स ऑलवेज बेटर कि आप अपना पेशेंट एक्जिया साल्मोनेला या इस तरह का जो पेशेंट है जिसको 3 से 4 दिन हो गया आपको एंटीबायोटिक देते हुए लेकिन उसका फीवर रिजॉल्व नहीं हो रहा, send that patient to the infectious disease consultant to handle them. This is very important. This is a big favor to the patient जो आप कर रहे हैं, और वो हमेशा ये याद रखेगा कि मुझे सही वक्त पे मेरे डॉक्टर ने सही डॉक्टर के पास भेज दिया था और मेरा इलाज प्रॉपर हो गया, तो मेरा ख्याल है उनका यकीन आप पे और ज्यादा बढ़ जाएगा। Dr. Yousuf, you just spoke about vaccination and immunization. So shouldn't they be included in EPI program, as this is a poor quality water disease, majorly an issue of poor
in rural areas? I think Dr. Sadia should answer this question. Yeah, basically it's because this is a funded program till now, or the government is trying to get this vaccine, which is very expensive, and the main vaccine, I don't remember the company name which is making this vaccine. They are providing us the vaccine free of cost to tackle this disease. Inshallah, in a year or so, this vaccine will be included in the EPI program. That's good news again. So last year, there were a few cases that were reported in UK and USA of XDR typhoid from people traveling from Pakistan. So Yes. what do you say about it? Well, definitely, as Dr. Yousuf has said, that they might become the carriers, okay? Because we used to shed virus for quite some time in our schools, right? And the important thing is that maybe the poor sanitation, like most of our people avoid washing hands even after coming to the washroom. Okay, this is a very common practice in Pakistan. I don't know what was the cause of that. Is fecal contamination. That's why they got the disease. Okay. Last question that I got is, can a patient, despite being sensitive to an antibiotic, develop resistance during the course of therapy? Any chance of relapse? Sorry, can you repeat the question? Okay. Can a patient, despite being sensitive to an antibiotic, develop resistance during the course of therapy? So is there any chance of relapse? Okay, the thing is that on therapy, usually the Salmonella doesn't develop resistance on therapy. It's not that kind of infection because organism, okay? So if you are treating a Salmonella is sensitive to ceftriaxone, give ceftriaxone, the patient will get treated, inshallah, but you have to it should be an appropriate dose and it should be for appropriate duration. It shouldn't be a partially treated, right? And yet, because we are not, if we keep on practicing our bad habits, like not washing our hands, not drinking boiled water or mineral water, not properly washing our vegetables and poultry, not using the proper cleanliness in our houses, definitely we'll get the disease again, because the basic problem जो है वो तो वहाँ पे persist है ना, ये तो हमारे पानी के अंदर है, मौजूद है, ये कहीं जा नहीं रहा है. तो अगर हम लोग अपनी प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करेंगे ना, जैसे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जैसे डॉक्टर यूसुफ ने अभी कहा है कि हमें प्रिवेंशन पे ज्यादा जोर देना है. अगर हम इन प्रिवेंट करेंगे, देन वी विल बी एबल टू डू द डिक्रीज द चांसेस ऑफ रिलैप्स और डिक्रीज द नंबर ऑफ केसेस इन आवर कंट्री. तो हमें दोबारा हो जाएगा अगर हम लोग अपने प्रैक्टिसेस को चेंज नहीं करेंगे. पानी में तो कोई तब्दीली नहीं होगी, ना ही हमारा पानी साफ होगा. ठीक है, पानी को प्रॉपरली क्लोरिनेट करें, जो आपके टैंक्स हैं घर के, और क्लोरिनेशन के लिए बहुत कम चाहिए होता है आपको. आप देखिए कि कितना गैलन पानी आपके टैंक में स्टोर हो रहा है, और इवन आप इंटरनेट पे जाके इसको कैलकुलेट करें तो जो हाउस होल्ड ब्लीच है वो थोड़ा सा 1 कप या ज्यादा 1 लीटर आपको डालना पड़ेगा, आपका पानी जो है वो साफ हो जाएगा. ठीक है, इस तरह से अपने पानी को आप डेली बेसिस पे क्लोरिनेट करते ना, क्योंकि बेसिकली जो पीछे से क्लोरिनेशन होती है वो नहीं हो रही है, क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए मैंडेटरी है कि जो हमें वाटर सप्लाई कर रहा है वो क्लोरिनेटेड वाटर हो, जो कि नहीं होता है. अगर कर भी रहे हैं तो उसकी इतनी लो कंसंट्रेशन है कि वो प्रॉपर्ली ऑर्गेनिज्म को किल नहीं कर रहा, और फिर वो आते आते पाइपलाइंस और हमारी सीवेज लाइन बराबर हैं, बहुत पुरानी हो गई है, तो वाटर जो है वो मिक्स हो जाता है उसके अंदर. तो बेसिक फैक्टर्स तो हमारे अपनी जगह पे हैं. We can get a disease again. It's not because of the resistance. Sorry. दूसरी चीज डॉक्टर अजमत, आई वुड लाइक टू से दैट रिमेंबर, मैंने पहले मेंशन किया था कि गॉल ब्लैडर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजर्वायर फॉर दीज जर्म्स, एंड गॉल ब्लैडर में इरेडिकेट करना इन्फेक्शन को बाज दफा बड़ा मुश्किल हो जाता है, because that is why cholecystectomy may have to be done in patients which have recurrent infections, because gallbladder remains a very difficult source of area to remove the typhoid germ from. So in recurrent cases, please remember that cholecystectomy may also be required in cases which
we call relapsing typhoid, but actually are due to the gallbladder infection, which is not been eradicated properly. Okay. I would like to have last comment on it. I would like both of you to comment on it. Like, how do you see the practice of sanitizers that people are using and mask hygiene? So after this, we will be ending the session. Well, one of the very अल्लाह का शुक्र है कि हमारे लोगों को हाथ धोने की जो है वो आदत हुई है हॉस्पिटल्स में भी और हॉस्पिटल के बाहर भी, ठीक है। तो हम अपने हाथों को जितना प्रॉपर्ली क्लीन करेंगे तो हमारी सुन्नत है कि हाथ सफाई निस्फ से मान है। तो हम जितनी सफाई रखेंगे हम ना सिर्फ टाइफॉइड से बल्कि और बहुत सारी चीजों से बचे रहेंगे। मगर सिर्फ ये है कि हमें सिर्फ अपने घर की और अपनी सफाई नहीं रखनी, जिस एरिया में रहते हैं हमें उसका भी साफ रखना है। ऐसा नहीं कि घर का कचरा उठाया और बाहर जाके गली में फेंक दिया किसी और के घर के आगे। दिस इज आवर कॉमन प्रैक्टिस। सो प्लीज हम जो ये प्रैक्टिसेस कर रहे हैं इसे हम कंटिन्यू रखें और सिंपल साबुन और पानी से अगर हम लोग हाथ धो रहे हैं, अप्रोप्रिएट टाइम पे धो रहे हैं, तो यही हमें इन डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए काफी है। खासतौर पे जो हमारा आम नज़ला जुकाम होता है वो एक को घर में होगा तो सबको होगा। वजह ये है कि हम टिश्यू पेपर यूज करने के बाद या नाक को हाथ लगाने के बाद हाथ नहीं साफ करते, धोते नहीं है, बल्कि जगह जगह लगाते रहते हैं। तो जिस जगह को टच करेंगे वहाँ पे ऑर्गेनिज्म जाएगा, दूसरा आएगा, उस जगह को टच करेगा, उसे लगेगा। दिस इज हाउ फ्लू या फ्लू लाइक सिम्टम्स या कॉमन कोल्ड जो है वो स्प्रेड होता है एक दूसरे बंदे में। तो वेरी इंपॉर्टेंट ना सिर्फ इस बीमारी से बचने के लिए बल्कि बहुत सारी बीमारियों से बचने के लिए हैंड हाइजीन बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली राइट। और उसमें जरूरी चीज है नेल्स की हेल्थ। ये आप देखें हम नाखून को कितने लोग नाखून नहीं काटते, दैट्स अ बिगेस्ट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। और वेब्स ऑफ फिंगर्स, जब हैंड वॉश करते हैं तो हम वेब्स बिटवीन द फिंगर्स को क्लीन थॉरली नहीं करते, एंड दे आर अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर जर्म्स। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लीन योर हाथ नहीं धोने की, ठीक है। लाइक ये जगह नेवर वॉश लाइक दिस और दिस और दिस और दिस, राइट। हम ऐसे धोते हैं हाथ, और इवन हम सैनिटाइज भी ऐसे ही करते हैं, जो कि गलत है। आपको वेब्स के लिए यूं करने हैं हाथ को साबुन से, आपको नेल्स के लिए अपने हाथों को यूं करना है, आपको अपनी कलाइयों को साफ करना है। दिस इज द प्रॉपर वे, जो कि वुजू के लिए हम हाथ करते हैं ना, दैट इज द प्रॉपर वे टू क्लीन योर हैंड्स। बाकी आप कहते हैं कि हमने हाथ धो के आए थे, हाथों की यहाँ पे जरासीम है, यहाँ जरासीम है, यहाँ जरासीम लगे हुए हैं, नेल्स के अंदर हैं, वो नहीं खत्म हो गया अगर हम लोग ने हाथ ऐसे धोए। तो जिस तरह से वुजू के लिए हाथ साफ किया जाता है उस तरह से हैंड वॉश करेंगे हम लोग, तो दैट इज अ प्रॉपर क्लीनलीनेस। Thank you so much to our eminent speakers for giving us time and putting light in depth on the most hot topic right now in Pakistan, typhoid. We would like on behalf, thank you to both of you and to our listeners and viewers who are watching this program. So we're gonna end this program now. तमाम लोगों का शुक्रिया जो इस वक्त देख रहे थे। अब हम किसी और दिन किसी और नए मौजू पे हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह।